I am Dr. Pooja from Hygiene Institute of Pharmacy. This is my another video on pharmacokinetics, Unit 3rd, Part 1, Lecture 16. These are the contents of topic pharmacokinetics definition, what is compartment modeling, mathematical model, what is compartment model, and classification of pharmacokinetics model, classification of compartment model, one compartment open model, two compartment open model, and last one is reference. Now come through one by one. First of all, what is pharmacokinetics? Students, pharmacokinetics means what the body does to the drug. बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या रिएक्शन शो करती है, कैसा एक्शन शो करती है जब ड्रग को बॉडी में दिया जाता है, तो बॉडी का कैसा रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. मीन्स कंप्लीट स्टडी ऑफ ADME, दैट इज़ नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. इट रिफर्स ऑन हाउ द बॉडी एक्ट्स ऑन ड्रग. बॉडी किस तरह से एक्ट करती है ड्रग के एक्शन के साथ में, ड्रग के साथ में, एंड इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. मीन्स ADME. दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. मीन्स ओवरऑल कंप्लीट स्टडी ऑफ ADME इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. दिस इज द सम ओवरव्यू पॉइंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. In pharmacokinetics, we can study the aim of drug therapy. What is the basic aim of drug therapy? To prevent or cure or control various disease states in any patient, and adequate or sufficient dose must be delivered to the target tissue of the body, of the patient's body, so that the therapeutic effect may get achieved and avoid non-toxic level or non-toxic effects. Okay, this is all about pharmacokinetics. And too much drug will result, as we know, poisonous effect, and very little amount of drug in the body may does not reach the desired therapeutic effect. This is the basic fundamental pathway for pharmacokinetics study. When drug move into the site of administration, that is known as absorption site, input of drug, then drug may comes into the plasma of any tissue, desired tissue where its action may be required. Then this is the distribution part. Drug may get distributed via plasma into the various tissues and then metabolize हो जाता है. देन इसके बाद इट मे गेट्स टू द एलिमिनेशन पॉइंट, एलिमिनेशन के लिए चला जाता है ड्रग. देन फ्रॉम एलिमिनेटरी ऑर्गन इट मे मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी via urine, feces, bile, urea, etc. Okay, so this is the basic pathway. Means absorption, distribution, metabolism and elimination covers in this pathway. Now come through the compartment modeling. What is this? Compartment modeling means the complete study of movement of drug from different body parts in a series way or in a parallel way. First of all, what is mathematical model? मैथमेटिकल मॉडल में बच्चों क्या होता है कि हम किसी भी ड्रग की प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की हम स्टडी करते हैं. टाइम टू टाइम ड्रग का क्या कंसंट्रेशन बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम मैथमेटिकल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम जस्टिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग की एक्शन किस तरह से मूव कर रहा है और अलग अलग डोजेस फॉर्म में भी ड्रग का क्या एक्शन है, ड्रग का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन ड्रग का टाइम टू टाइम इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है. एक पैरेलल स्टडी भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं और इस तरह का जो डेटा हमें आउटपुट में मिलता है दैट इज़ नोन एज मैथमेटिकल डेटा और मैथमेटिकल मॉडल. सो व्हाट इज़ दिस? मैथमेटिकल मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के थ्रू पता चल जाता है कि ड्रग का एक्शन कितना सही मूव कर रहा है, टाइम टू टाइम क्या कंसंट्रेशन ड्रग का पहुंच रहा है बॉडी में. Mathematical models are a collection of mathematical quantities, operations and relations together with their definition, and they must be realistic and practical. प्रैक्टिकल होना चाहिए मैथमेटिकल मॉडल, रियलिस्टिक होना चाहिए, क्वांटिटीज़ ऑपरेशंस इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट होती है और किसी भी तरह की कोई एरर की बच्चों चांसेस नहीं होते हैं.
A model is a hypothesis that employs mathematical terms to concisely describe quantitative relationship. Means relationship स्टूडेंट्स क्या होता है, ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में टाइम टू टाइम कैसा जा रहा है, इसका हम डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल? दिस इज़ इट्स वैलिडिटी. It should have practical applicability and should valuable in describing events chosen accurately with high precision. एरर के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसकी वैलिडिटी ज़्यादा अच्छी होती है. Prediction ability is also good. These models may predict the qualitative and quantitative changes in these parameters that are rate constant and half-lives of drug. Computability, easily computable they are. Consistency of result is very sharp. Reproducibility is an important quality of mathematical model. Now what is the basic applications of pharmacokinetic model? Pharmacokinetic models की applications क्या है? सबसे पहले तो इसका है characterizing the behavior of drug in patients. एक्शन ड्रग का किस तरह से आ रहा है उसका हम कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम ड्रग का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है या टाइम टू टाइम ड्रग का कंसंट्रेशन लो हो रहा है. एवेलुएटिंग द बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़. इन बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ में मीन्स अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है कि ड्रग, कोई भी ड्रग अलग अलग फॉर्मुलेशंस में उसकी स्टडी कर सकते हैं हम कि इसका पर्टिकुलर, सपोज करते हैं हम टैबलेट के फॉर्म में उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या एक्शन है, सस्पेंशन के फॉर्म में क्या एक्शन है, लिक्विड्स में क्या एक्शन है और सेमी सॉलिड्स में क्या एक्शन है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्टर फिजियोलॉजी और डिजीज़ स्टेट. डिजीज़ स्टेट अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी है पेशेंट को या फिर वो नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें उस कंडीशन में उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी की स्टडी हम कर सकते हैं वाया इट्स ADME स्टडी. एज वेल एज वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ड्रग इंटरेक्शन रिएक्शन. ड्रग इंटरेक्शन रिएक्शन अगर आ रहा है तो उसका भी हम एप्लीकेशन इसमें फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के थ्रू हम कर सकते हैं. These are the types of pharmacokinetic model. These are various types of pharmacokinetic models divided into three parts: compartment model, compartmental model, physiological model and non-compartmental analysis. First of all, compartment model. Compartmental model means a compartment is a group of tissue with similar blood flow and drug affinity. A compartment is physiologic or anatomic region. किसी भी बॉडी के पार्ट का टिश्यू हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें कि हाईली रेट ऑफ परफ्यूज़न ड्रग का साथ ही साथ ब्लड का फ्लो है और उसको हम कंसीडर करके चलते हैं एक कंपार्टमेंट. फिर जब ड्रग इस कंपार्टमेंट से, इस टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाती है, दूसरे ऑर्गन के टिश्यू में जाती है, तो ये हमारा कहलाता है 1 कंपार्टमेंट एंड 2 कंपार्टमेंट. ओके, तो इस तरह की जो स्टडी है वो हमारी कंपार्टमेंटल एनालिसिस कहलाती है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को हम या तो सीरीज़ में या पैरेलल वे में हम जस्टिफाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि ड्रग का परफ्यूज़न रेट किस तरह से अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी के रीजन्स में कैसा जा रहा है. ये हमारा कहलाता है कंपार्टमेंट. Compartment is the traditional and most widely used approach in pharmacokinetic characterization of the drug. किसी भी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ADME को जस्टिफाई करने के लिए जो कंपार्टमेंटल एनालिसिस है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही पुराना है मेथड और बहुत ही रिलायबल है. These models simply interpolate an experimental data and allow an empirical formula to estimate drug concentration with time. इसमें हम बच्चों ड्रग के कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल के साथ में देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम ड्रग का कंसंट्रेशन क्या इफिकेसी ड्रग की आ रही है. ओके, दीज आर द एजम्पशंस ऑफ कंपार्टमेंटल मॉडल. इसके कुछ एज्यूम करना पड़ता है हमें, जैसे कि बॉडी को एज्यूम करना पड़ता है कि इसमें कंपार्टमेंट का सीरीज़ है. सीरीज़ मीन्स सपोज करते हैं हमने ड्रग हमारी स्टमक में है, देन इसके बाद ड्रग लिवर में गई, लिवर से ड्रग किडनी में गई, इसके अलावा कोई और भी अलग टिश्यूज़ कंपार्टमेंट है, यहाँ पर भी जा सकती है, यहाँ पर भी जा सकती है. इस तरह से हम एक एज्यूम करते हैं कि ड्रग का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है. ओके, द बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज़ ऑफ कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स की सीरीज़ के फॉर्म में हम बॉडी को हम अपने सिलेक्ट करते हैं. देन इसके बाद द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्रग का जो मूवमेंट है डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्म में हो रहा है. रेट कांस्टेंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ एंट्री इनटू द एग्जिट फ्रॉम कंपार्टमेंट. Statistical analysis of plasma concentration time data is another method used to find out number of compartments.
और इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल एक डेटा तैयार कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ड्रग का कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम कितना मूव कर रहा है बॉडी में। दीज आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ दिस। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंपार्टमेंट मॉडलिंग। कंपार्टमेंट मॉडलिंग की एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड इज़ वाइडली यूज्ड। सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, वाइडली यूज्ड है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। Visual representation is very good. It is useful in predicting drug concentration time profile. Drug concentration time profile को predict करने का ये सबसे helpful method है। And also plasma drug concentration और therapeutic toxic effect के range को भी हम इससे justify कर सकते हैं। Its simplicity allows for easy tabulating, volume of distribution and t-half. Half-life और volume of distribution को हम easily calculate कर सकते हैं by the help of compartment modeling. These are the various types of compartment models based on compartments arranged in parallel or series way. The compartments may be classified as mammillary model, catenary model, open model and closed model. Let's come one by one. Mammillary model. This is the most common compartments used in फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप में वाइड रेंज में यूज़ किया जाने वाला मॉडल है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि सेंट्रल कंपार्टमेंट जो कि हमारी बॉडी है, उस बॉडी में अलग अलग पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स हैं जो कि कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ में। Central compartment consists of plasma and high perfused tissue in which drug distributes rapidly. सेंट्रल कंपार्टमेंट में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो बॉडी है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है और उसमें प्लाज्मा में ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैपिडली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्म में होता रहता है। एज वेल एज द नंबर ऑफ रेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में विल अपीयर इन ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इट इज़ गिवन बाई आर। मीन्स जो इसमें रेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के मॉडल में प्रेजेंट है उसे हम कंसिडर करते हैं कैपिटल आर। एंड फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल आर इज़ इक्वल टू 2n-1। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आर की वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो ये है और एक्स्ट्रा वैस्कुलर के लिए आर इज़ इक्वल टू 2n वैल्यू इनपुट की जाती है। वेयर व्हाट इज़ n? दिस इज़ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज n। दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स। Two compartment open model IV injection and two compartment open model with first order release. Now come through catenary model. In this model the compartments are joined in one another in a series like compartment. एक तरह के सीरीज़ के फॉर्म में ये कंपार्टमेंट्स आपस में अटैच्ड होते हैं। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि एक सीरीज़ के फॉर्म में हम ये एज्यूम करते हैं कि कैटेनरी मॉडल में एज्यूम किए जाते हैं कि ये अरेंज्ड हैं। दिस मॉडल इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू ब्लड एंड दिस मॉडल इज़ रेयरली यूज्ड। ये जो मॉडल है इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्रग जो है ब्लड में डायरेक्टली प्रेजेंट है और ये सीरीज़ के फॉर्म में ब्लड फ्लो के थ्रू ड्रग मूव करती है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। बट द डिसएडवांटेज इज़ दिस दैट दिस मॉडल इज़ रेयरली यूज्ड। अधिकतर हम मैमिलरी मॉडल को ही यूज़ करते हैं, कैटेनरी मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर टुडेज डिस्कशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स डेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।